for the very interestingly, like we've got Prince Narula's and Yuvika Chaudhary wedding. That was our first professional wedding we ever shot. और उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा, like there's no turning back. And recently we covered Karishma Tanna's wedding, which got very popular across the industry. So a little bit I'll tell about myself. I am Himanshu. I am born and brought in a small city in Madhya Pradesh called Chhatarpur, and uske baad I did my engineering from Indore, Madhya Pradesh. And in मतलब जब मैं engineering कर रहा था, I've started shooting birthday parties, farewell and all those stuff. तो lot of my friend told me कि यार you have never make for doing a job in a corporate world. And I was so good at capturing moments and all those stuff during the farewell and birthday parties that every friend of mine suggested me that I should do photography. So in 2016 I shifted, I've completed my engineering, I got placed in a company. उसके बाद I shifted to Bombay because I was like कि मेरे से 9 से 5 वाला जॉब तो नहीं हो पाएगा. So I've shifted to Bombay. I've started working as a freelancer photographer for different company, and then later I realized कि I can do wedding photography with my own team, because the kind of visual I have, what I am observing, there's very less people who are doing actually that. Like एक चीज़ होती है कि सिर्फ weddings में जाना, shoot करना, wedding को photo दे देना, ख़त्म. What I was more into कैप्चरिंग मोमेंट्स, फैमिली से बहुत कनेक्ट करना, ऑब्जर्व करना, एक स्टोरी नरेट करना पूरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में. सो देन कैसे मैंने प्रिंस और युविका को अप्रोच किया, आई अप्रोच देम ऑन इंस्टाग्राम, एंड लाइक महीनों तक मैं मैसेज करता रहता था बिकॉज आई एम रियली ह्यूज फैन ऑफ देम एंड आई रियली वॉन्टेड टू शूट देम in their wedding. So I keep messaging them on Instagram महीनों तक. One day Prince messaged me कि show me your work. So I've said like I have done a lot of wedding shoot before, but मेरा खुद का कोई personal काम नहीं है, but definitely meet me once and I'll make sure I will convince you with my work. एंड हमारी मीटिंग हुई, फिर हमने एक प्री वेडिंग शूट किया जो एक ट्रायल था, बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए भी थोड़ा टफ था बिलीव करना कि किसी ऐसे बंदे को अपनी वेडिंग के लिए हायर करना जिसने पहले कुछ ऐसा प्रोफेशनल काम नहीं किया हो. एंड आफ्टर दैट जो प्री वेडिंग से आउटकम्स निकले, उसके बाद प्रिंस एंड युविका बोथ वर सो हैप्पी, एंड दिस इज हाउ अवर जर्नी स्टार्टेड एंड देयर इज नो टर्निंग बैक नाउ. व्हाट इज द थिंग दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपका जो फोटोग्राफी का मीडियम है, यूट्यूब? What is the strongest thing? You told that storytelling. Yes. This is like making a film kind of a thing. Yes, so we do photography and film both in weddings. So first of all, our step is just not to we do very selected number of weddings. First of all, we get to know a couple. क्या है उनकी chemistry, क्या है, what they would like to have. जैसे recently मैं एक छोटा सा example दूंगा. अभी हम एक कपल को शूट करने वाले हैं. सो आई वेंट थ्रू देयर इंस्टाग्राम. मैंने रेकी की कि यार इनको क्या पसंद है, कैसे मिले. तो आई गॉट टू नो कि वो पहली बार जब मिले थे अपनी लाइफ में एक बैडमिंटन कोर्ट में मिले थे. तो मैंने वो चीज़ नोटिस कर ली. मैंने उनको वो चीज़ बताई कि यार जब हम आपका वेडिंग शूट करेंगे ना, कहीं फ्री टाइम अगर हो तो मैं रैकेट लेके आऊँगा, आप लोग खेलना, मैं वो विजुअल शूट करूँगा, और जब आप वो नरेट करोगे स्टोरी कि हम जब बैडमिंटन, तो वो इतना प्यारा लगेगा. तो मैं बोलूँगा कि इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग, बिकॉज व्हेन वी शूट सेलिब्रिटी वेडिंग्स, सारे सेलिब्रिटी कभी ना कभी हज़ारों फोटोग्राफर से शूट करा चुके हैं और एक से एक प्रोफेशनल फैशन फोटोग्राफर है. व्हाई दे डोंट चूज दोज फोटोग्राफर ओवर अस? बिकॉज वेडिंग फोटोग्राफी हैव चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड इट्स मोर अबाउट नरेटिंग अ स्टोरी. एंड इन इंडियन वेडिंग्स देयर इज लॉट ऑफ इमोशंस, हैप्पीनेस, party. So it's a mix of emotion, happiness and sadness as well. So our forte is meant to capture those moments, like when people gonna look after 20-30 years after that, they will feel like, okay, that was our wedding. These were the moments that we live for. So these are the things which I think which make us different from other. बट इन टुडेज टाइम जितना मोबाइल का मतलब पेनिट्रेशन हो, इतने लोगों के पास मोबाइल है, हाई क्वालिटी मोबाइल है, बिल्कुल, तो वो कितना एक ज़्यादा चैलेंज क्रिएट किया है फोटोग्राफी बिजनेस में, क्योंकि सबको मोबाइल है, सब मोबाइल से शूट कर सकते हैं और बिल्कुल वो इतना चैलेंज हो सकता है कि अगर आप कैमरा है भी तो दे विल प्रेफर मोबाइल ओवर कैमरा. देखिए, मुझे नहीं लगता कि कैमरा को कभी भी फ़ोन रिप्लेस कर पाएगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हटा के. क्या होता है,
जब भी आप देखेंगे कोई एक फैमिली मेम्बर या कोई किसी की शादी में जाता है 100 200 400 500 फ़ोटो खींचता है, वो 4-5 स्टोरी पे डालता है, भूल जाता है। बट एक जो प्रोसेस होता है, एक हमारा जो प्रोसेस है कि सारा जितना हमने शूट किया है डिफरेंट एंगल से उसको मर्ज करना, इंटरव्यू के साथ अलाइन करना, पूरी फ़ोटोज़ को अलाइन करके उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में देना, ये शायद एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। और रही बात कैमरा और फ़ोन की, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी इतना डिफरेंस है कि जो आप कैमरे में देखते हो, जो कैमरे की स्पेसिफिकेशन हो, आजकल के जो इतने हाई एंड कैमरेज हैं, वो आपको फ़ोन में शायद ही कभी मिल सके। तो एक ये ओवरऑल प्रोसेस है जो कि मतलब मैं बोलूँगा चैलेंजिंग है। कभी कभी सिर्फ डिफरेंस हमको ये चैलेंजिंग लगता है कि जब बहुत सारे जो फ़ोन से फोटोग्राफर आजकल इन्वॉल्व हो गए हैं फैमिलीज़ में, चाचा मामा भैया जो हर कोई, उसमें कई बार हमको प्रॉब्लम ज़रूर होता है कि लोग हमारे फ्रेम के आगे सामने आके अपने फ़ोन से खींचते हैं। बट आई थिंक वो बहुत मैनेजेबल है और मुझे नहीं लगता कि ये कभी आगे जाके चैलेंजिंग होगा कि मोबाइल फ़ोन कैमरा को ओवरटेक कर पाए। ये भी है कि जब भी आप कहीं जाते हैं शूट करते हैं तो कई अपवर्ड मोमेंट्स भी होते हैं, अगर फंक्शंस भी है, कोई आपस में झगड़ा कर रहा है, समबडी स्मोकिंग और समबडी फ्लर्टिंग, कुछ भी ऐसा इंडिसेंट बिहेवियर होता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप फिर? See, as a professional wedding photographer, it is really important to understand what to shoot, when to not shoot. ऐसे कई बार बहुत सारे मोमेंट हैं जहां आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप सिर्फ एज अ इवेंट फोटोग्राफर नहीं हो कि जो हो रहा है आपको शूट करना है, आपको ये ऑब्जर्व भी करना है कि सामने सिचुएशन क्या है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ब्राइड ग्रूम या उनके पेरेंट्स, रिस्पेक्टिव पेरेंट्स में नोक झोंक हो जाती है या वो सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको उस टाइम चुपचाप स्टेप आउट भी होना है। कई बार कोई रो रहा है, किस वजह से रो रहा है, अगर विदाई हो रही है तो आपको पता है कि वो मोमेंट आपको कैप्चर करना है। किसी दूसरे रीज़न से रोना है, कब आपको स्टेप आउट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दिस इज़ अ कॉल ऑफ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। लाइक इन आवर टीम एवरीवन इज लाइक ट्रेन्ड इन अ सच ए वे, देन दे शुड नो कब शूट करना है, कब शूट नहीं करना है। So we respect the privacy of the couple when we were always asked to shoot weddings जहाँ पे शोर शराबा, smoking, दारू सब चलती है, like it's a part of a celebration. But sometimes we know कि किसको शूट करना है दारू पीते हुए, किसको नहीं करना है। Even in the high end celebrity weddings we have to be very careful कि हम किसको शूट कर रहे हैं। एक सेलिब्रिटी का कोई भी फ़ोटो, भले वो इंटेंशनली ना हो, वो कुछ स्मोक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर वायरल हो जाता है तो उनके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और एज अ वेडिंग फोटोग्राफर दिस इज़ आवर जॉब टू मेक श्योर व्हाट टू शूट, व्हाट टू नॉट शूट और व्हाट टू शो टू पब्लिक। सो इट्स आई थिंक लास्टली हम जब मुंबई में एस्टैब्लिश्ड हैं आप, तो मुंबई का जो माहौल है बेसिकली जो सेलेक्ट माहौल, वो कितना आपको लगता है कि एक ब्रांड आगे चल कर अपग्रेड कर सकते हैं? फोटोग्राफी बिजनेस तो पूरे वर्ल्ड में हर छोटे शहर गांव तक में है, बिल्कुल। इन मुंबई में एस्टैब्लिश होना कितना बड़ी बात है आपके लिए? ऑनेस्टली मैं एक बहुत स्मॉल टाउन से हूँ, तो मेरे लिए एक ये ड्रीम कम ट्रू है। लाइक मैंने लाइफ में भी कभी नहीं सोचा था आज से 7-8 साल पहले कि मैं मुंबई में होऊंगा, मुंबई में मेरा स्टूडियो होगा और हम सेलिब्रिटी वेडिंग शूट कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आई बिलीव इन मी, आई बिलीव इन आवर टीम कि हम चीज़ें करते गए। एंड आफ्टर प्रिंस नरोला वी नेवर अप्रोच टू एनी सेलिब्रिटी। इट्स समटाइम सेलिब्रिटी गेट इन टच विद अस एंड वी रियली लव योर वर्क एंड वी वांट टू वर्क विथ यू। सो आई थिंक चैलेंजिंग नहीं, इफ़ यू बिलीव इन योर ड्रीम जस्ट go, don't be so fast, just make sure you do your work hard and rest, I think the God will help you to achieve that. Thanks. Thank you.